on high, Lord. We thank you for your grace upon our life, Lord. We exalt your name, Lord. We thank you for your grace. We thank you for your loving kindness, Lord, which is new every morning, Lord. We worship you, Lord, and we bless you, Lord, because you are worthy to be praised, Lord. Thank you, Lord. Princes and paupers, sons and daughters, kneel at the throne of grace. Losers and winners, saints and sinners,
धन्यवाद करते पिता, आज आपने हम सबको यहाँ पर लाया पिता। हम धन्यवाद करते पिता आपके प्रेम के लिए पिता। हम धन्यवाद करते पिता, आप हमारे उद्धार करते हो पिता और आप हमें जानते हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं आज की सभा के लिए पिता, आपका वचन पिता हमारे हृदय तक पहुँचे पिता, और जो भी वचन होगा उसे समझने के लिए पिता आप हमें ज्ञान और बुद्धि देना पिता। हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। Morning, church. This is the offering message. This is not taken from any passage, nor am I referring to the Bible, because most of us know most of the places where God tells us to give. But this is a testimony that I have just experienced, and I would like to share it with you. That the Word of God says that when you give, He multiplies. But there's also a passage where it says that you have holes in the pocket, though you draw much or you collect a lot, nothing remains with you. So in this passage he talks about managing your resources, and I've personally experienced this. On the 17th, everybody knows Dilip from Bahindar. He was supposed to leave for his hometown, and prior to that he wanted some tickets for UP, and it was very difficult being the Diwali season, and tickets were not available. They were very rare. People were willing to pay 1200 to 1500 just for a reservation in the normal coach, the sleeper, the on money over and above the ticket. So somehow he contacted me, and in a few days I had met a guy, and then he was talking about arranging tickets. And this guy is known as Pappu Ticket. The adage itself is ticket. So I happened to speak to him, and I managed a ticket for him, and it was given. It was unbelievable. He told me nobody in the factory would believe. And they said, David bhai, मेरे को नहीं लगता आपका टिकट का हो गया हो, अगर मैं देख लूँगा तो मुझे यकीन हो जाएगा. So I asked him for a WhatsApp number, and I sent it, so on and so forth, and he got the ticket, and he was happy about it. But the train timing and date, the reservation was there, but the train timing and the date were not mentioned because of this COVID thing, and the train would leave, not leave. It was not very sure, I guess. So anyway, but the ticket was there, and it was a confirmed ticket. The PNR number and everything was there in place. And on the 17th early morning he was supposed to leave. So 16th I was trying to get in touch with him, and it was not possible. 17th morning at 4 he calls me up, 4:15 he calls me up, and he tells me he's in a rickshaw and he's going to Kurla to board the train. And I happened to speak to him. I told him I missed you and I wanted to talk to you. So anyway, in the course of a conversation he tells me that I booked a rickshaw, and he told me 500 rupees for it. And before I could leave, somebody else came and met me, and then he told me that he's supposed to leave for his hometown in UP. So I asked him, "Kahan ja rahe ho?" So he said, "So and so place." And then this guy said, "Even tomorrow I'm leaving." So this guy said, "Even I'm leaving." So which train? It was the same train, one compartment ahead, one behind. So instead of paying 500, they shared it like 250 per person. And this is how God works in our lives. He manages your resources. He knows your needs. He knows the heart's desires. You don't have to ask Him for everything. There is a word which says that I will ask and you shall receive. There is another word which says I will give it to you in your sleep. So this is something that we need to be encouraged. We as believers, when we look to these new believers and the way they work and their faithfulness with God, God is faithful. And yes, let's give this time, this season, whatever the ups downs, whatever we have, whatever our heart's desire is, let's fulfill and expect God to do much, much more in our lives. Not only manage, but fulfill every need that we ever think of, that He fulfills, in small and big. Let's be faithful in giving. In Jesus' name, amen. सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि की रक्षा तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सारे प्रणाम, गाते हैं तेरी
मसीह की। आज मैं फिर परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो जैसे रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 20 के बी पॉइंट में लिखा है कि परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहाँ पाप हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। अफिसियों की किताब अध्याय 2 वचन 8 में हम अनुग्रह के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारा उद्धार है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर का दान है। तो हमारा जो उद्धार है हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये परमेश्वर का हमारे लिए दान है। अनुग्रह का ग्रीक में मतलब क्या है? अनुग्रह का ग्रीक में मतलब होता है कैरिश, CHARIS, जिसका मतलब होता है फेवर, पक्ष लेना, और एक गिफ्ट, एक उपहार। तो इसकी मतलब परमेश्वर की ओर से हमें वह तोहफा मिला है जिसके हम काबिल नहीं थे, पर ये परमेश्वर की ओर से हमें मिला है और परमेश्वर हमारा पक्ष लेता है। तो इब्रानी भाषा में इसका मतलब है, पुराने नियम में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है हेसेड, HESED, मतलब परमेश्वर की करुणा के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो एक इसको बोल सकते हैं कि परमेश्वर की वाचा का प्रेम है। जी, दो शब्द जो है अनुग्रह के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब अध्याय 6 वचन 7 में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर थी। हमें यहाँ पर शब्द में सिर्फ एक नाम दिखता है कि नूह पर थी, पर असल में परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि पूरे परिवार के ऊपर थी। और नूह का परिवार ही जो था वो उस जल प्रलय में बचाया गया। जैसे हम देखते हैं कि आज मैं 5 उन स्त्रियों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिन पर अनुग्रह बहुतायत से अनुग्रह हुआ। उसमें से पहली लेडी है उत्पत्ति की किताब अध्याय 38 वचन 3, जेनेसिस 38 वर्ष 3 में लिखा है, तमार जो कनानी 38:3 में लिखा है, कनानी स्त्री थी तामार, जो कि एक वेश्या थी, और परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह किया। और मत्ती की किताब अध्याय 1 वचन 3 में हम यीशु मसीह की पहली लेडी को देखते हैं उसकी वंशावली में। दूसरा हम देखते हैं, दूसरी लेडी को देखते हैं जिसका नाम था रहाब, वो भी वेश्या थी। उन यहोशू की किताब अध्याय 2 वचन 1 से 11 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों को उसने पनाह दी थी और उसका पूरा परिवार जो था बचाया गया था। जब भेदियों को भेजा गया था, यहोशू ने भेजा था कि तुम जाकर क्या है उसके यरीको में जाकर तुम उसका भेद लो, तब उनको बचाया गया था। रहाब ने उन भेदियों को बचाया था, परमेश्वर के लोगों को बचाया था। तो जब हम देखते हैं यहोशू की किताब अध्याय 6 वचन 25 में रहाब का पूरा परिवार बचाया गया, उसका वंश इजरायलियों के बीच में रहने लगा, और वचन कहता है वो आज तक बना हुआ है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भले जो है पूरे लोगों का नाश किया गया, पर परमेश्वर का अनुग्रह, उस पाप में भी परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से हमें देखने को मिलता है रहाब की लाइफ में। और हम उसके भाषा में पढ़ते हैं कि उसका नाम भी यीशु मसीह की वंशावली में आता है। और तीसरा हम देखते हैं रूथ के विषय में। रूथ के नाम का मतलब ही अनुग्रह है, उसके नाम का मतलब ही अनुग्रह है। जैसे कि मैंने बोला कि पुराने नियम में HESED हेसेड नाम शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें भी हम देखते हैं कि रूथ जो मोआब देश से थी, मोआब देश जो है बाइबल में वो अन्य जाति के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है। मोआब का मतलब होता है कि वो पाप के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ, वो पापी देश से थी, पर फिर भी परमेश्वर ने उसके ऊपर अपना अनुग्रह दिखाया।
और परमेश्वर ने अनुग्रह से ही उसको बचाया। तो पहला उसने परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से भी उसके ऊपर दिखता है कि एक तो वो बचाई गई, दूसरा परमेश्वर ने उसको बोआज जो था अनुग्रह से ही मिला है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसकी शादी जो थी बोआज से हुई, जो कि बाइबल में यीशु मसीह का एक चित्र है। और भी अनुग्रह बढ़ के परमेश्वर का हम उसके लाइफ में देखते हैं, जब उनकी शादी के द्वारा, उन पति पत्नी के द्वारा, रूथ और बोआज के द्वारा उनका बेटा ओबेद पैदा हुआ। और हम जानते हैं कि उनकी आगे वंशावली से दाऊद राजा पैदा हुआ, और दाऊद जो है एक वो महान राजा हुआ जिसकी राज्य से यीशु मसीह आएगा। और ये तीसरी वो लेडी है जिसके ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह जो बहुतायत से हुआ, और उसको हम देखते हैं कि वो यीशु की वंशावली में हम उसका नाम देखते हैं। तो चौथी जो औरत है वो है बत्शेबा। चौथी जो लेडी है वो बत्शेबा है, जो कि पहले उरिया की पत्नी थी। बत्शेबा और दाऊद की जो स्टोरी है वो हमें पता है कि क्या हुआ दूसरा शमूएल अध्याय 11 में। पर हम परमेश्वर ने उस औरत के ऊपर भी, उस लेडी के ऊपर भी परमेश्वर का बहुत अनुग्रह हुआ है, और हम भी उसको वंशावली में देखते हैं, यीशु मसीह की वंशावली में देखते हैं। मत्ती की किताब अध्याय 1:6 में हम उसका नाम भी देखते हैं। और परमेश्वर का जो उस पर हमेशा अनुग्रह की दृष्टि बनी हुई थी। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जाता है। और पांचवी जो लेडी है वो है मरियम। मत्ती की किताब अध्याय 1:18 में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मरियम को चुना जो कुंवारी थी। और यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि यीशु मसीह की वंशावली में हम पढ़ते हैं कि मरियम के लिए एक वचन शब्द इस्तेमाल हुआ है, बहुवचन नहीं बल्कि एक वचन जो है शब्द इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि बाकी सारी वंशावली में लिखा है, पूरी वंशावली में लिखा है कि पति पत्नी से, पर यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ, ना कि यूसुफ और मरियम से। तो परमेश्वर ने मरियम जो पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी थी, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई, और उसके ऊपर परमेश्वर का महान अनुग्रह हुआ। तो इन सारी बातों में हम देखते हैं कि इन 5 स्त्रियों पर कैसे परमेश्वर ने अपना महान अनुग्रह प्रकट किया है, और हम उसका बढ़ता हुआ देख सकते हैं। परमेश्वर ने इजराइल के द्वारा राज्य स्थापित करना चाहता था, पर उनके खुद के लोगों ने यीशु मसीह को नकारा। और मत्ती 13 के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो अपना राज्य स्थापित करने का प्लान था उसको पोस्टपोन किया अन्य जाति के ऊपर। तो जैसे वो 5 लेडी जो थी अन्य जाति से थी, तो हम देखते हैं कि मरियम वंशावली से आती है, पर उन बाकी की लेडी जो अन्य जाति से थी उन पर महान अनुग्रह हुआ। तो हम भी अन्य जाति से आते हैं। हम जो क्लीसिया है उसका ओरिजिनल बाइबल में उसका मतलब है इक्लीजिया, मतलब बाहर से बुलाए गए लोग। तो हम पर भी ये महान अनुग्रह हुआ है, और परमेश्वर ने अपना कार्य करने के लिए हमें चुना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो कम नहीं, हमेशा बढ़ता ही रहता है। तो इसकी बहुत सारी और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, पर मैं लास्ट में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। परमेश्वर के पास विश्वासी लोगों के लिए ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो हमारे पाप के लिए हमें सज़ा दे सके। हमारी ताड़ना परमेश्वर इब्रानी 12 के अनुसार जरूर करता है, पर परमेश्वर कभी भी हमें सज़ा नहीं देगा इस धरती पर, और ना ही कभी स्वर्ग में हमारा न्याय कभी नहीं होगा हमारे पापों की वजह से। तो ये परमेश्वर का महान अनुग्रह है। तो इन वचन से प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। Good evening, church. I hope you all are doing well. Today I'm going to speak a little bit on the topic of grace. We need to look around and we need to ask ourselves a question: do people really know what is the grace of God?
or even if they know grace, do they really know what is the grace of God? And there are so many Christians today who are living a life of guilt and condemnation, and also living their life with a fear of failure, and so many living a depressed and a discouraged life because they feel that they cannot excel in anything. Let us today see how the amazing grace of God is. If we see the world today, it says we need to keep on doing something, and because of what we do, and then God is pleased. So here we see that the world teaches that we need to perform, or else we will lose the grace of God. The world teaches that we need to constantly please God, and we live a life in fear and depressed and discouraged. And the truth is, God has done everything for us. God is the one who is amazing, and there is nothing amazing in any man that he or she can ever be proud of or boast about their own works in order to please God. We can say that the grace is the unmerited, undeserved, unearned kindness and favor of God. I'll repeat, grace is the unmerited, undeserved, unearned kindness and favor of God. We'll see that in Ephesians chapter 2 verse 8. It says, "For by grace you have been saved through faith, and not that of yourself. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." So as long as we are on this earth, we will hear a lot of boasting on this earth. But when we get to heaven and when we see Jesus with his nail prints in his hands, which were nailed to that cross, and his side pierced, with tears in our eyes, we will say, "This is the reason I am here today in heaven, and it's only and only because of what Jesus did for me." Yes, when we had received salvation, when we got saved and accepted Jesus as the Lord and Savior, we knew that it is the grace and only the grace of God that has saved me. But somewhere after a few years, or maybe after 10-15 years, we start feeling that maybe I have not done enough in my life for God, and maybe God is not pleased with the way I have lived my life. And after I accepted Jesus as my Lord and Savior, but the Bible says even your righteousness is as filthy rags. There is one short story about a child who was told in school to maintain a book with the pictures of school teacher and the subject which they are teaching. At the end of the year and on the last day of the school, this child, what he did was he drew some mustache on all the female teachers' photos, and he drew long hair for his male teachers on his male teachers' photos. And he came home and he was excited to show his dad, because the child felt that he did something funny. Yes, indeed it was funny, but his dad, instead of laughing at it, said, "What you did is stupid and wrong." And the son realized his mistake and he started to cry. But his dad said, "Since you have realized your mistake, and we will make another copy for you so that you can preserve this book." And that is grace. The scripture says that love covers a multitude of sin. And in the same way, we can say about grace that grace covers a lot of wrong things which you and I have done in our lives. And grace is undeserved. We do not deserve it. Romans chapter 3 verse 24, it says that being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. The verse clearly says freely, which is undeserved. So grace is undeserved.
We didn't deserve grace many years back in our life, nor do we deserve grace even now, today. Funnily, I like to end with a story about a boy, and his mother was a single mother, and she didn't have any husband. They were very poor, but she always taught this little son of hers to pray and ask God and say that, always keep on saying that God will provide. One day, when her son wanted to join Bible college, they didn't have enough money to pay the Bible college fees. So she told her son, just go by faith tomorrow and take admission in Bible college. And keep on praying and always saying that God, my God, will provide. Next day, the boy goes and he stands in that admission queue. He keeps on praying and says to himself, and he remembers his words from his mother that God will provide, and he keeps on saying this word. Finally, he reaches that admission counter and he starts feeling ashamed because he has no money to give to the counter person. He turns around and he starts walking, and suddenly one tall man who is standing and watching the entire admission process holds his hand, and he puts money in this boy's hand and he says, go and pay your fees. The boy was so happy that he does not even count the money. He gives that money to the counter, and they stamp the receipt on that, and on that receipt it was written, paid in full. And that's exactly what Jesus did for you and me. He paid it in full. And let us today be thankful to God for this amazing grace, and only because of this amazing grace that we are saved, and which He has freely given to each one of us. Amen. Shackled by your heavy burden, meet the Lord of guilt and shame. Then the hand of Jesus
Good morning, church. And this is a very short introduction message. And the title of this message is Grace and the Finished Work of our Lord Jesus Christ. Like every born again Christian, he's been saved by God's grace. Ephesians 2, 8 and 9. There is nothing that we can do. There is nothing we did to obtain God's grace. It is only through the unconditional love of God that saved us from the darkness, and our Lord Jesus Christ brought us from the darkness into the light. And every born again Christian is the light of this world. And it is only through God's grace that we all have been saved. It is not of our works, it is not of our good deeds. It is only through the unconditional love of God. So we'll open our Bibles to 1 Corinthians chapter 1 and verse 4. We'll read it. I give thanks to my God always for you, because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. Let's pray. Father, we once again thank you. We pray for this portion. Lord, we thank you for your grace, your love, and we continue to seek your blessings. In Jesus' precious name I pray. Amen. Now, Paul is writing this letter to the Corinthian church, and he's saying in this verse, I thank my God that grace has been given unto you. Now, if you read the whole of the 1 Corinthians and the 2 Corinthians, we understand that what kind of church the Corinthians were, or what kind of people they had in their church. All kind of sin dwell within the people there. And Paul is thanking God that God has given his grace upon these people. Now, as far as the Apostle Paul is concerned, we know his life stories. That how by grace of God he was saved. And by grace of God he was taken from the darkness and brought into the light. And Paul understood that it is not his work, it is only the work of God. Paul understood that as I needed this grace of God, so do the other believers need the grace of God. No man on this earth can give us this grace. No man on this earth can give us this grace. It's only our Lord Jesus Christ who gives us this grace unto salvation. No man on this earth can love us unconditional. It is only our Lord Jesus Christ can love us unconditional. In spite of all our failures, in spite of all our faults, God loves us very much. And we need this grace of God in our day-to-day life. Every second, every minute, and every hour, we need this grace of God. Now, we just finished the conference, and the theme of the conference was freely received, freely give. In this letter, Paul writes and thanks God that God has given this grace unto me and unto the Corinthians. And Paul also is urging us all that be the receiver of the grace of God, be the receiver of the love of God.
And in the same way, as you receive the grace of God, as you receive the love of God, pour out your grace and your love to your fellow brothers and sisters. Many a times when we make a mistake, we become a lawyers for our own self. We try to defend our own self for the mistake we have done. We try to make an excuses. Oh, it is because of this, it's because of that. But when someone else makes the same mistake, we become very judgmental, or we start judging them. This is also known as the hypocrisy. God has bestowed His grace upon every individual born again Christian. And it is only through the grace of God that we all have been saved. Today, if we are alive, it is only because of God's grace and His unconditional love. And God expects that we too give the same grace and love to our fellow brothers and sisters. Joseph in the Old Testament is an amazing example that how his brothers put him in the ditch, sold him to the king, and at the end his brothers are pleading to Joseph that do not punish us. But Joseph says something very amazing. He says, "Am I God to judge you?" And we too in our life can have the same character. Why should we judge somebody? Let us be the receiver of God's grace. Let us be a people who freely give the grace towards our brothers and sisters. And let us be focused on the love of God. Let us be focused on the mercy of God. God desires mercy and not judgment. Let us be receiver of God's grace. Let us be people who pour out God's grace. And let us not forget that it is only through God's grace that you have been saved. It is only through God's grace that we are alive. So have a wonderful day. Thank you. नमस्ते दोस्तों, आइए इस संदेश में जो है हम परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में देखेंगे। परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, ये उसका एक सबसे बड़ा महान गुण है। ये जो गुण है उसमें वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। क्योंकि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आया, लेकिन हमने सुना पिछले हफ्ते के संदेश में, लेकिन अनुग्रह जो है परमेश्वर के द्वारा आया, क्योंकि वो सच्चाई है, वही मार्ग है, वही जीवन है। और हम लोग आज का इसमें देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो किस तरह वो जो है कभी ना बदलता है, क्योंकि वो हमारा एक जीवन का लंगर है, एक एंकर है हमारा, और वो कभी ना बदलने वाला। इसके वजह से हम जो भी हम जीवन के सिचुएशन में जाते हैं, परिस्थितियों में जाते हैं, तो हमें वो जीत मिलती है। वो ये जो है जीवन के इस तूफान में हम लोग जो है आर्थिक स्थिति में जाते हैं, या फिर पारिवारिक तकलीफ़ों में जाते हैं, या फिर कभी कभी जो है बहुत बड़ा बीमारी के इसमें भी जाते हैं। लेकिन इस सब में जो है परमेश्वर हमें वादा देते हैं, वो कभी बदलता नहीं और वो हमें कभी त्यागता नहीं है, और चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तीतुस का 2:11 में बोलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह सारे मानव जाति के ऊपर प्रकट हुआ, और ताकि सभी लोग को जो है वो आनंद काल का जीवन मिले। आइए मैं प्रार्थना करेंगे और हम संदेश में आएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस वचन को आशीष दीजिए। सचमुच परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है,
मुझे अभिषेक कर और प्रभु मेरे द्वारा हम सबसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं जो है इब्रानियों का 6वां अध्याय और वचन 18 आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों का 6:18 और यहाँ पर, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा विश्वास बन जाए, जो शरण लेने के को इसलिए दौड़े हैं कि आशा को जो सामने रखी है प्राप्त करे। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां परमेश्वर यीशु ने मलकीज़ेदेक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुवे के रूप में प्रवेश किया है, आमीन। तो परमेश्वर का वाक्य इस वचन के ऊपर आशीष रहने दे। परमेश्वर, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी तो क्या किया, उसने स्वयं को क्या किया, स्वयं का ही वचन ले लिया। और क्योंकि हम देखते हैं कि जब दो व्यक्ति के बीच में करार होती है तो वो लोग क्या करते हैं, सबसे बलवान या फिर सबसे उनसे भी ऊंचे लोगों का वो लोग क्या करते हैं, एक तरीके का वो लोग उसमें कस्में लेते हैं इस व्यक्ति के नाम पे, क्योंकि जब कोई भी उनके बीच में कुछ भी फूट आए, कुछ भी बाधा आए, तो वो उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो उससे उनसे ज़्यादा जो है सामर्थ है। इसलिए लेकिन परमेश्वर जब अब्राहम के साथ वाचा किया तो उसने क्या किया, स्वयं की कस्में खाई, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि अब्राहम कोई भी स्थिति में आए और वो वचन को न रखे, क्योंकि वचन न रखने वाले उन दिनों में क्या होता था, ये हम जानते हैं। उन दिनों में क्या होता था, वचन न रखने वाले उस जानवर की तरह ही उनके साथ बर्ताव होता था जिसको बलि चढ़ना पड़ता था। लेकिन परमेश्वर, हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वयं का वचन दिया। और हम लोग आज ये भी देखते हैं कि लोग कस्में भी खाते हैं। आज किस तरह कस्में खाते हैं, बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कस्में खाते हैं। हम लोग ये देखे, अगर अमेरिका में देखा है तो ये बाइबल के ऊपर लोग कस्में खा कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उससे श्रेष्ठ जो है कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर ने जो ये गुण जो है, उसका गुण किरदार एक बहुत ही महान गुण है, वो कभी नहीं बदलने वाला ऐसा गुण है। हम देखते हैं कि उसके गुण के बारे में कि वो यीशु मसीह जो है वो सदा काल के लिए जो है महायाजक है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो एक याजक जो है वो क्या होता है, हमेशा जो है उसकी जब तक काल रहती है वो काल तक जो है उसका आशीष हमें मिलती है, मतलब उन दिनों तक वो लोगों तक मिलता था। लेकिन नया याजक आने के बाद वो किस तरह रहता है, इसके ऊपर ही पूरा जो है देश का पूरा आर्थिक स्थिति रहता था और किस तरह उसे परमेश्वर से आशीष मिलेगा। और ये सब स्थिरता उस याजक के ऊपर था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उस एक ही बार स्वयं का बलि देकर क्या किया, वो उसको पूरी तरह जो है वो कार्य पूरा कर दिया। क्योंकि हम लोग पुराने नियम में देखते हैं उस मंदिर में हर एक चीज़ें जो बलिदान चढ़ाने के लिए या कोई भी होने दो, चाहे वो छोटे छोटे चिमटे होने दो या फिर कई सारे वेदी या बर्तन, हर एक चीज़ें। लेकिन एक चीज़ हम लोग नहीं देखते, वो है कुर्सी। क्योंकि याजक लोगों को उन दिनों में बैठने का कोई भी ये नहीं था, समय ही नहीं था, क्योंकि वो लोग वहाँ पर बैठ नहीं सकते। वो लोग निरंतर जो है बलि चढ़ाते जाते थे, निरंतर बलि चढ़ाते जाते थे। और इस बलिदान से क्या होता था, लोगों के पाप जो है सिर्फ ढाप लिए जाते थे सिर्फ, और फिर अगले साल फिर से। लेकिन यीशु मसीह ने जो है क्या किया, हमेशा के लिए क्या किया, बलिदान चढ़ा दिया, हमेशा के लिए। ये हमारे लिए बहुत ही सांत्वना देने वाली बात है। और उसके लिए वो बलिदान चढ़ाने के बाद वो स्वयं जाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर था, सिद्ध व्यक्ति था, इस दुनिया में आया। अनुग्रह क्या है, इस दुनिया में लोग जो है क्या करते हैं, अच्छे काम कर परमेश्वर की तरफ, परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं। लेकिन अनुग्रह क्या है, वो परमेश्वर ने स्वयं दिखाया कि परमेश्वर क्या स्वयं हमारे पास आया ताकि वो अनुग्रह हमें दिखाए। और वो स्वयं जो है हमारी तरह क्या हो गया, बन गया। आज हम देखते हैं कि उसके वजह से हमें जो है कोई भी बलिदान करने का ज़रूरत नहीं है। और हम उसके बलिदान को जो है, बलिदान के द्वारा वो धार्मिकता हमारे अंदर उसने डाल दी है।
तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, उसकी उसकी तरह उसके धार्मिकता हमारे अंदर आती जाती है। और एक गुण जो है परमेश्वर का ये है कि वो हमारे और परमेश्वर के बीच में सदा काल के लिए क्या हुआ, एक मध्यस्थी बन गया, हमेशा हमेशा के लिए। पुराने नियम में सिर्फ याजक लोग एक मध्यस्थी रहते थे, वो लोग जाकर बलि चढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वयं, इब्रानियों का 8:6 में बोलते हैं, 8:6 में, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थी ठहरा, जो और उत्तम प्रतियोगी के सहारे बंधी गई है ना। ये एक बहुत ही बड़ा बात है कि परमेश्वर न सिर्फ बैठ गया हमारे लिए काम कर कर, वो जो है क्या है, आज हमारे लिए एक मध्यस्थी का काम भी कर रहे हैं, और वो जो है निरंतर कर रहे हैं, और वो कभी थकता नहीं है। क्योंकि हम पर शैतान दोष तो लगाते हैं, क्योंकि हम जो है कमज़ोर है, हम निर्बल है, पापी है, और हम स्थितियों में जाते हैं, तूफानों से गुजरते हैं, हो सकते हैं हम में से गलती हो जाए, लेकिन शैतान ठहरा है वो दोष लगाने के लिए। लेकिन इसके लिए परमेश्वर स्वयं जो है एक मध्यस्थी बना, वो हमेशा हमेशा के लिए अभी मध्यस्थी कर रहे हैं। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि वो हमारा एक जीवन का लंगर भी है, जैसा हमने इब्रानियों का 6वां अध्याय में अभी कुछ ही देर पहले पढ़ा था। और इसलिए क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या नया नियम का ये वाचा जो है वाकई अच्छा है क्या? पुराना नियम और नया नियम में क्या फ़र्क है? पुराने नियम में देखा है तो वाचा का मतलब ये था कि उस जानवर को जो है बलि चढ़ाते थे, और उसके लहू के द्वारा पाप जो है ढाप दिए जाते थे। लेकिन नया नियम में ऐसा क्या है? नया नियम में हम लोग जो है इब्रानियों को 9:15 में हम लोग देखते हैं कि इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थी है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराध से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें। बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि वो एक मध्यस्थी होने के नाते हमारा आज क्या होता है, हम हमेशा उसकी तरफ देख सकते हैं। क्योंकि जैसा हम जिसको भी हम लोग देखते हैं, जो हमारा एक लक्ष्य रहता है, हम जो है क्या होते हैं, उसकी तरह ही बनते जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम हमेशा जो है उसके सिंहासन के पास जाते हैं और उसे देखते हैं क्षमा मांगने के लिए, जो हमेशा तैयार है, विश्वास योग्य है हमें क्षमा करने के लिए, और वो हमें माफ़ करते हैं। और जितना बार हम लोग उसके पास जाते हैं, जितना हम लोग करीबी रिश्ता रखते हैं, हम लोग उसकी तरह क्या होते हैं, बनते जाते हैं, और उसका गुण जो है हमारे अंदर आते जाते हैं। क्योंकि अगर अनुग्रह को अगर समझना है तो हमें और भी कुछ ये करना पड़ेगा, क्योंकि अनुग्रह के परमेश्वर का ये सबसे बड़ा क्या है, गुण है। स्पर्जन जो है, चार्ल्स स्पर्जन एक कहानी बताते हैं, मतलब एक दृष्टांत में इस तरह बताते हैं कि एक व्यक्ति को जो है उनके ज़माने में माफ़ करने का जो है मौका मिला। जो भी हर एक साल जो है कैदी लोग को जो है माफ़ कर सकते थे, और वो इस जेल में गए, और जेल में बहुत सारे जो है कैदी लोगों से उसे मिला। पहला कैदी ने ऐसा बोला कि मुझे वाकई जो है माफ़ करना चाहिए, क्योंकि जो है मैं इसलिए इस जेल में हूँ, क्योंकि मेरे इधर का जो है न्यायिक सिस्टम जो है वो सही नहीं है। तो वो ये व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, वो बोलते हैं कि ये न्याय की गलती है, और आप माफ़ी के लायक नहीं हो। इस तरह वो सोचकर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, वो बोलते कि मुझे फंसाया गया और मैं निर्दोष हूँ, और मैंने ऐसा कोई भी जुर्म नहीं किया, और मैं वाकई यहाँ पर निर्दोष हूँ, इसीलिए मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। तो वो दूसरा व्यक्ति उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि ये न्याय का गलती है, इसलिए इसको माफ़ करने के बाद इसका कोई भी असर नहीं होगा। फिर उसके बाद वो तीसरा व्यक्ति के पास जाते हैं, और वो तीसरा व्यक्ति बोलते कि मैंने वाकई बहुत बड़ा अपराध किया है, और इसीलिए आज जो है मैं आजीवन काल के लिए कारावास में हूँ, मतलब जेल में हूँ, और मैं वाकई माफ़ी का लायक नहीं हूँ। तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, ये तीसरा व्यक्ति को जो है छुड़ाते, और हम देखते हैं कि वो व्यक्ति को सचमुच में मालूम है कि माफ़ी का मतलब अनुग्रह का मतलब उसके ऊपर अनुग्रह हुई है। क्योंकि पहले दो व्यक्ति को अगर आज़ाद किया जाता था तो वो लोग को अनुग्रह का मतलब मालूम नहीं था। तो दोस्तों जो है मैं यही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी हम पर जो है अनुग्रह किए, क्योंकि वो पहले दो व्यक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो वो बोलते कि वो उनका ऐसा रवैया था, उनका ऐसा सोचना था कि
वो ये चाहते थे कि वो ऐसे सोचते थे कि परमेश्वर का हम पर कुछ तो कर्जा है ना, परमेश्वर का कुछ तो कर्जा है, और इसीलिए वो चाहते थे कि परमेश्वर हमारे साथ वाकई कुछ फैसला करे। लेकिन अनुग्रह क्या है? मुफ्त है ना, उसे कोई भी कुछ भी चीज़ों से खरीदा नहीं जा सकता। कोई भी, चाहे कितना भी अच्छे गुण काम होने दो, चाहे कितना भी बलिदान बड़ा चढ़ाने दो, लेकिन हम उसे खरीद नहीं सकते। ये मुफ्त है, क्योंकि अनुग्रह जो है इसी की तरह सस्ता भी नहीं है, और वो मुफ्त है। और जिसके लिए जो उसको ग्रहण करना चाहते हैं उसको वो अनुग्रह परमेश्वर वाकई देता है। अनुग्रह क्या करते हैं? हमारे लिए बदलता है। अनुग्रह का इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी सीमा नहीं है अनुग्रह में, और इसीलिए हम देखते हैं कि अनुग्रह सब पूरे मानव जाति के पास गया है, चाहे वो अविश्वासी भी होने दो। इसीलिए यीशु मसीह जो है लूका का 4 अध्याय में वचन 22 से 27 में यह उदाहरण देते कि जब यीशु मसीह पहली बार प्रचार किए तो लोगों ने क्या किया? अनुग्रह का वो वचन देखा, और उन्होंने यशायाह का 61वां अध्याय 2 वचन का सिर्फ पहला भाग ही पढ़ा, क्योंकि यीशु मसीह आए थे अनुग्रह के लिए आए थे, और न्याय के लिए नहीं आए थे। इसीलिए उन्होंने वचन को आधे में ही उसने खत्म कर दी थी, और वो जाकर वो बैठ गए। तो यीशु मसीह वाकई आए थे अनुग्रह के लिए, हमारे पर अनुग्रह करने के लिए, और वो हम पर हुई है। आज तक हम देखते कि अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह के बगैर हम कहाँ रह जाते? क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला, अनुग्रह का कोई भी सीमा नहीं है, और इसीलिए हम लूका का 4 अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह वाकई वहाँ पर उदाहरण देते हैं 22 से 27 वचन में, कि यीशु मसीह ने क्या किया? इलाइजा को उस विधवा के पास भेजा जो जरापत के पास रहती थी, और उसको जो है क्या किया? मदद पहुंचाई। और हम देखते हैं कि आगे वो नमान का भी एक उदाहरण लेते हैं यीशु मसीह, क्योंकि नमान जो है एक अविश्वासी था, और वो वाकई दुश्मन का सेनापति था। वो सेनापति के पास हर एक गुण था, लेकिन वो कोढ़ का बीमारी से ग्रस्त था। तो पाप ये नहीं कि हमारे पास कितना अच्छा काम है, नमान के पास बहुत से अच्छे अच्छे गुण थे, लेकिन वो क्या था? कोढ़ी था, उसके ऊपर एक धब्बा लगाने के लिए काफ़ी था। लेकिन परमेश्वर देखते कि उसको भी जो है परमेश्वर चंगाई देते। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है। यह अनुग्रह हम सब के ऊपर परमेश्वर ने प्रकट किया है। तीतुस का 2 अध्याय 11वां वचन। तो आइए हम लोग ये संदेश को इधर ही खत्म करते हैं। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आज हम इस दिन के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद तेरा हर एक अनुग्रह के लिए परमेश्वर हम यही प्रार्थना करते हैं आज शाम प्रभु, कि यहाँ पर कोई है जो इस वाकई वीडियो को देख रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि अनुग्रह उन पर हुई है क्या। हाँ, मैं यही बोलना चाहता हूँ, अनुग्रह आप पर हुई है। अगर आप यह अनुग्रह को पाना चाहते हैं तो मेरे पीछे आप विश्वास कीजिए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा कि आप विश्वास कीजिए कि आप पर अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह उस तरह हुआ है कि स्वर्ग से परमेश्वर स्वयं आया और क्रूस पर मर गए। तो बाइबल कहते हैं कि जो कोई भी उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा कि वो आया, मर गए और जिंदा हो गए, और वो आज स्वर्ग में है, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका कभी भी नाश नहीं होएगा, आप स्वर्ग में जाओगे। इसलिए नहीं कि आप अच्छे काम करते हुए, इसलिए कि परमेश्वर ने वो सारा काम जो है क्रूस पर पूरा कर काम को ख़त्म कर दिया है। तो आपको सिर्फ विश्वास करना है। आप अगर विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए, प्रिय यीशु, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह कि आप मेरे लिए आए, क्रूस पर मर गए और फिर आपको दफनाया गया। यीशु मसीह, ये मैं विश्वास करता हूँ। मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप 3 दिन के बाद जिंदा हो गए। हे यीशु मसीह, मुझे बचा ले, मैं जब भी मरूँ मुझे स्वर्ग में ले ले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमीन चर्च, थैंक यू। Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my
when my strength is failing. The end draws near and my time